अभी के टाइम में अगर हम जी। इमोशनल वेलबींग पे बात कर रहे हैं, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अगर हम टच ना करें तो वो हम अपना पेरेंटिंग वाला पार्ट पूरा नहीं कर सकते। एंड देन आई वुड लव टू कम टू फॉर टू डिस्कस अ कपल ऑफ थिंग्स अराउंड अडल्टहुड एज वेल। और वो है, आज के टाइम पे पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न है बच्चों के स्क्रीन टाइम पे। और इधर मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स, कंप्यूटर, गेम्स और टेलीविजन। तो स्क्रीन टाइम के ऊपर आपका क्या व्यू है? कितना अच्छा है, कितना बुरा है? क्या कंट्रोल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे कराना चाहिए? स्क्रीन टाइम हैज बिकम वन बिग थिंग। ये तो सब आप क्या करें इस पे? ये सब लाके किसने दिया बच्चों को? एग्जैक्टली exactly. तो मेरा भी कंसर्न यही होता है कि किड्स आल्सो लर्न व्हाट डू दे सी। तो जब आप बात कर रहे थे ना कि हम When you're साथ में बैठ making के something, रीडिंग, तो sorry, जब अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो बच्चा भी पढ़ेगा, बुक का हैबिट आएगा। व्हेन आई एम ऑन माय फोन ऑल द टाइम, देन तो बच्चा भी देखेगा कि वो फोन पे हम रह सकते हैं इतने देर। तो क्या करें? right. तो जब हम चीजों को इतनी इजीली अवेलेबल करवा देंगे, then we can't complain about it, right? Till a certain age, we need to control. उसके बाद हमने अगर सही, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, वैल्यूज डाल दी, संस्कार सही डाल दिए, then we have to trust our kid that they will take the right step and the right path in life. But till a certain age, parental control is very important. We give all these things to our kids. Why do we give them? Why? क्यों देते हैं हम? जो भी मांगते हैं हम दे देते हैं, क्यों? अपने ही कंफर्ट के लिए, अपने इजी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और It's very आजकल देखता हूँ इवन टॉडलर्स, बच्चे खाना नहीं कर रहे, पहले फोन पकड़ा दो फिर खाना खाने लगते खाने लगते हैं। हैं। तो हम अपने बच्चे को ये सिखा ही नहीं रहे कि भाई ब्रेन एम्प्टी छोड़ना भी एक ठीक चीज है। हर वक्त 24 घंटे यू वांट योर ब्रेन टू बी स्टिम्युलेटेड, एंड वी ब्रिंग अप द किड लाइक दैट, देन दे विल नॉट नो एनी अदर वे ऑफ एग्जिस्टिंग. They will not know. Like, for example, my own son, like many of his classmates started driving cars. Their parents gave them cars to drive. It's illegal when they were 15. And my son used to come and say, I wanted the car. And he said, nothing doing. And he would little bit throw attitude and this and that. I said, sorry, maybe their parents don't love their kid enough. We love you too much. You can get as angry as you want, but buddy, you're not getting the car keys. Simple. You just have, and we did not give him his Xbox and etc. till he finished his class 12th. All my friends have everything. So in this house, it will not come. I mean, as parents, you have to not give in all the time. You should learn to say no and be firm. It's I understand it's a tightrope walk कि कहाँ दोस्त बनना है, कहाँ पेरेंट बनना है, थोड़ा सा मुश्किल है. बट जहां तुम ही अपना वो नहीं, मतलब बाउंड्रीज ही नहीं बना रहे हो, तो फिर द किड विल ऑब्वियसली लर्न दैट आई कैन मैनिपुलेट माय पेरेंट्स लाइक दैट. सो यू हैव टू बी फर्स्ट वेरी स्ट्रांग एंड वेरी क्लियर एज टू योर डूज एंड डोंट्स. पहली बात तो. एंड दूसरी बात, जब आपने चीज दे ही दी उसको, I'm sorry I'm using this word, but ये सही word है. जब उसको लत लग ही गई, तो it's like an addiction. It has to, that habit has to be removed like any other addiction, It has to be, because all these apps, I don't know whether you people know this, are designed to hook you on. They're designed in a way that you get hooked on to it. I have to catch myself so many times. It's really difficult. I pick up the phone to do something else and I forget. And then I have to say, no, what was it? Then I put it away. Then I remember what I had to do. And it just pulls you in. These apps have been designed to make you an addict. So when you know this as an adult, as a parent, then why are you giving so many gadgets to your children? Because you want your children to be busy so that you are free to do what you want to do. Is there any other reason? If you're giving them gadgets for educational stuff, then this is the time to sit with them and watch the right stuff. This is the time to sit with them and watch the right
shows and the right programs. And well, if your child is already addicted, उसको de-addict करना भी अब कर सकते हैं हम, because जो activities हमने समझाई और ये games वगैरह and dialogue, once a child feels fulfilled, जैसे संदीप जी ने बोला कि हमें घर में ही दोस्त मिल गए, तो once you feel fulfilled and you don't need all these things, then the habit will also go. So it's about inculcating the right values, और वो बचपन से करना बहुत जरूरी है. उनको एंगेज कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, बाकी चीजों में एंगेज कर सकते हैं ताकि उनका स्क्रीन टाइमिंग रहे. हमारे भी घर में है ऐसा, बच्चे देखते हैं फिर उनको बीच में रोकना पड़ता है कि ठीक है मत देखो, कैरम बोर्ड खेलो, या फिर चलो एक साथ पूरी फैमिली वाले बैठ के थोड़ा सा लूडो खेल लो, ताकि उसके बाद थोड़ा सा. So you can limit the screen time. It's always better to limit, like, give it to them for an hour, and that too conditionally. If you do this, sorry, but some people disagree with being conditional with kids, but I feel it's okay, because then they learn the reward system. To get something like this, I have to complete some task or complete some chore, and we don't make it like a office or a jail. We just say कि buddy मेरे को इसमें help कर दो, तो फिर I'll be able to help you with this. Just make it more friendly and lively, and don't make it very autocratic. Don't make the child feel मेरे को ना ये blackmail कर रहे हैं या force कर रहे हैं. उसको लगे कि हम एक contract कर रहे हैं आपस में, हमारा एक agreement हो रहा है parent और मेरा. तो it will not sound very cruel. But लेकिन प्रॉब्लम तो ये भी हो जा रहा है ना कि इवन आज के टाइम पे आपको कैरम खेलना है, चेस खेलना है, लूडो खेलना है स्पेसिफिकली, वो भी स्क्रीन पे ही खेल रहे हैं लोग. वो भी स्क्रीन पे खेल रहे हैं. I know. वो भी ऐप के थ्रू खेल रहे हैं. And it's not so much fun. The other day somebody invited me to a chess game online. It was horrible. I mean, because it tells you कि यहाँ पे मूव करना है तो तुम्हारा ये danger है. It's already telling you. What's the fun? Where is your brain activity? Where is your thinking? So it's no fun, yeah. लूडो के लिए हम स्क्रीन यूज कर सकते हैं. बाकी मैंने क्या है कि कैरम बोर्ड और चेस मैंने ओरिजिनल ला रखा है. और चेस का मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे मैंने चेस लाने का रीजन यही था कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया, और उसके बाद चेस खेलने के बाद उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल गायब हो गया. इनिशियली मैं उनसे हारता था ताकि उनका मॉरल बूस्ट हो कि भाई ठीक है मैं जीत रहा हूँ. और मैंने क्या पाया उस दौरान कि साथ साथ उन्होंने स्क्रीन टाइम तो कम किया ही किया, चेस के साथ उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और मतलब उनको चेस की लत लगी है, लेकिन उससे ये हो गया कि उसका माइंड बहुत शार्प होता चला गया, और वो मुझे बहुत सही लगा. और ये हो सकता है, लेकिन लूडो अगर स्क्रीन पे रहते हैं तो हम साथ में रहते हैं, तो वहाँ ये सिक्योरिटी रहती है कि भाई बाकी चीजें वो कोई अनवांटेड चीजें नहीं देखती. हाँ, that's also a good idea. तो एक और चीज, my dad used to fill the house with books. हमारे घर में किताबें हम पढ़ के रखते रहते थे, वो लाते रहते थे, वो स्टॉक खत्म नहीं होता था कभी भी. एंड एक चीज which I remember specifically, which I really enjoyed, were these IQ quizzes. There were these lot of quizzes which now you have them online also, but you used to have these books. It used to be really interesting solving those puzzles, like if you just ask the whole family, okay, वो मैचस्टिक यहाँ से यहाँ हटा के इसको ये नंबर को ये नंबर बनाना है. There are so many of them if you go online, and it's fun. It's really fun. Also उनको ये भी बताना पड़ेगा कि बच्चा ऑफलाइन is a new luxury, और ये new luxury में आ गई तो फिर मजा आ जाएगा. Yes, absolutely.